You founded the Women's Chamber of Commerce and Industry, the Lahore division. So, what does the WCCI do for entrepreneuring women in Pakistan? I was the first lady as executive member of Lahore Chamber. वो मुझे जिता तो लाए. They do not know कि मेरे से उन्हें काम क्या लेना है. This is a very nice platform अगर औरतों को सही मिल जाए. Hmm. So that is while sitting in that chair, I announced women अच्छा. chamber. So they were like, They must have lost their oh minds. yes, ना मुझे निकाल सकते थे because I was elected. हुमायूं अख्तर साहब जो मिनिस्टर थे तब कॉमर्स के, वो हर वक्त उसके इस्लामाबाद उसके सर पे बैठ जाते थे कि करो प्रूव. वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे. वो कहते कोई और आ जाए तो मुझे इसमें से निकाल दे. माय फादर इज द ओनर ऑफ कोहाट सीमेंट. मेरी फैमिली ने कहा कि हमने कोहाट कप करना है, ब्रिज का गेम करना है जिमखाना में. मुझे तो पता ही नहीं था कि मुशर्रफ साहब उधर आ रहे हैं बिकॉज ही इज ऑल्सो ब्रिज प्लेयर. माय मदर सेड ओके दिस सीट इज फॉर हर. ठीक है. So she gave me the seat next to मुशर्रफ साहब on the अच्छा. stage because हम होस्ट कर रहे थे ना. तो मैंने उसको बता दिया. मैं कहा 6 साल हो गए इस चक्कर में, एप्लीकेशन है और प्रूव नहीं हो रही. And he was surprised. He said, okay, send your application with this person and on Monday and it was done. और जो लॉ बना उसमें वुमेन एंड मेल चेंबर दोनों लिखे गए. सो उससे लॉयर ने क्या कहा बाकी चेंबर्स को कि आप सब डी रजिस्टर हो गए. उससे तो एक और धमाका जो बोला ना, वी वर द ओनली वन हु वर रजिस्टर्ड और all कोई other भी was नहीं registered था. deregistered. You are one of the only female CEOs Yes. in the pharma sector in Pakistan. Yes. So, how difficult is something like that to do? हमने जब अप्लाई किया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, तो जो दोनों कंपनीज को हमने बनते तोड़ने वाले थे ना, दे मेड श्योर कि रजिस्टर ना हो. एमओएच में चले गए, बाहर खड़े थे जी, पता चला कि मीटिंग खत्म हो गई है. उसमें जब हमारे एप्लीकेशन की तो रिफ्यूज हो गई. जरदारी साहब के बहुत क्लोज काजमी साहब जो उस वक्त उनके बिल्कुल राइट हैंड थे. सो दे कॉल्ड देम बैक एंड दे सेड जी हमें तो कुछ नहीं पता बट यू हैव टू प्रूव दिस कंपनी. सो इट वाज अप्रूव्ड. Rabbi Shali Sidri wa Yusirli Amri Wahlul Uqdatam min Lisani Yafqahu Qawli. Ladies and gentlemen, the guest I have today is an accomplished medical professional, visionary entrepreneur, and one of Pakistan's most influential women leaders in the healthcare and pharmaceutical sectors. She earned her MBBS from King Edward Medical University and later pursued a diploma in tropical medicine and hygiene from the University of London. Transitioning from clinical practice to industry leadership, she built a career that blends medical expertise with business foresight, a combination that allowed her to identify structural gaps in Pakistan's healthcare system and work towards sustainable solutions. The CEO of Don Valley Pharmaceuticals and Akram Medical Complex, Dr. Shaila Javed Akram. She has played a pivotal role in modernizing pharmaceutical manufacturing in Pakistan. Under her leadership, Don Valley developed into an advanced facility recognized for its ISO compliant CGMP and CGLP certified operations. She has been recognized with several national and international honors, including the FPCCI Lifetime Achievement Award presented by the President of Pakistan and the SARC Entrepreneur Award 2023, marking her as a prominent force in elevating Pakistan's pharma standards and advocating for ethical, patient-centric healthcare. Beyond the pharmaceutical industry, Dr. Shella is widely known as a champion of women's entrepreneurship and economic empowerment. She founded the Women Chamber of Commerce and Industry Lahore Division and became the first female vice president of the Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry FPCCI. Her work has opened doors for thousands of women in business, influencing policy, creating opportunities, and reshaping narratives around women's leadership. Today, she stands as a symbol of resilience, innovation, and purposeful leadership. We welcome you to the show, Dr. Shella. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for such an elaborate introduction. Thank you so much for being a part of the show. कैसी हैं आप? Alhamdulillah. How's your day going so far? Well, busy. Busy? Start was very busy. I would imagine कि for a woman CEO like you, आपने घर भी manage करना है, आपने business भी manage करना है. It's always a busy morning. It is. आज हमारा वो था, we had sent some aid to Palestine. Oh, तो आज उसका वो अल खिदमत people they wanted कि हम सब उधर आके एयरपोर्ट पर you know have a group photograph. So मेरा it was इस like पे very early today. It was like 8 in the 8 a.m. we had to reach the airport. अच्छा मेरा इस पे एक वैसे क्वेश्चन है कि टॉक अबाउट सेंडिंग एड टू पैलेस्टाइन और काफ़ी इंस्टाग्राम पे भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट नज़र आ रही होती हैं। वो एड पहुँचती भी है? क्योंकि हम न्यूज़ में जब देखते हैं तो इज़राइल ने तो ब्लॉकेड्स लगाए हुए हैं और Well, इनका इनका वो है नहीं ना, पैलेस्टाइन अंदर नहीं ना जाते, हुँ, उनका बाहर है, आउट ऑफ दैट एरिया. ठीक है। हाँ, पेशेंट जब वहाँ पर जो लोग हैं ना उनको करते हैं. अच्छा ठीक जी, है। इनके कैंप्स बाहर है. बिल्कुल ठीक, जी, बिल्कुल ठीक। सो पैलेस्टीनियंस के लिए एडवोकेट ये आप काफ़ी टाइम से कर रही हैं? जी, हम हमारी मेडिसिन्स हम मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं अच्छा, और फिर वो उसका पूरा मेडिसिन्स ही जा रही थी.
मेनली मेडिसिन्स जाती हैं आपकी। आज जो थी ना, वो ठीक फिर है। सारा कंटेनर उनका जो भी बाय एयर जाती है ना, कतर एयरवेज़ से। अच्छा, जी। माशाल्लाह अमेज़िंग। चलें अल्लाह आपको इस काम का अजर दे। इट्स वेरी गुड टू नो कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ऐसे बिज़नेसेस हैं दैट आर सपोर्टिंग द पैलेस्टीनियन कॉज़ एज़ वेल। तो मैम मुझे ये बताएँ कि सबसे पहले हमने बात की कि यू फाउंडेड द वुमेन्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द लाहौर डिवीज़न। So what does the WCCI do for entrepreneuring women in Pakistan or women with an entrepreneurial mindset? एक्चुअली जब आप बिज़नेस में जाते हैं दैट यू नो वेरी वेल, you have to be part of some chamber. So I was part of Lahore chamber for these approvals and all जो हमारी रूटीन होती है ना, from the chambers एक लेटर चाहिए होते हैं off and on for your business. So this was I was just that much I was introduced to the chamber. So one fine day founder group they called me and they said कि आप इलेक्शन में हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं Indian elections. So that was like really surprising कि अच्छा मतलब why कि we want to do some innovation. वो पता चला कि वो चूँकि हार रहे हैं, तो they thought कि इनोवेशन से शायद उनकी बचत हो जाए। अच्छा, तो they made me as a guinea pig. Okay, fine. So I thought about it, but I did not know anything about the chamber, but still I agreed that okay, let's take a chance. तो वो उसमें बिकॉज़ ऑफ आवर प्रोफेशन आई वाज़ ऑलरेडी वी वर रनिंग अ ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्स। तो उसकी वजह से वी वर प्रीटी वेल नोन अमंग लाहौर पीपल एंड अमंग लाहौर चेंबर। इस तरह ना बिकॉज़ आवर हॉस्पिटल दैट टाइम वाज़ लाइक अ शाइनिंग स्टार। तो उसमें फिर इंट्रोडक्शन ईज़ी हो गई। तो वी माय हस्बैंड आल्सो हेल्प्ड मी तो वी प्रमोटेड आवरसेल्फ वेरी वेल विद वोटर्स। तो आई वन बाय अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन अच्छा, हाँ, in Lahore chamber. Single I was अभी तक so far I'm like very few who got single votes and won. पैनल वोट्स तो नहीं मिलने थे, वो तो हारे हुए थे ना। अच्छा, तो सिंगल वोट से ही जीतना था। आई अच्छा, आई हैड द ह्यूज नंबर ऑफ सिंगल वोट्स। तो अमेज़िंग। हाँ, तो उसमें फिर व्हेन आई वन आई वाज़ द फर्स्ट लेडी एज़ अ एग्ज़ीक्यूटिव मेंबर ऑफ लाहौर चैप्टर। उसमें देन वो मुझे जिता तो लाए, जीत तो मैं गई। वो दे डू नॉट नो कि मेरे से उन्होंने काम क्या लेना है। सिटिंग इन द मीटिंग एंड ऑल सो दे स्टार्टेड आस्किंग मी अच्छा आप औरतों को बुलाएँ, आप उनको मेंबर्स बनाएँ, यू मेक अ कमिटी एंड गिव सम प्रपोजल्स एंड दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। एक्टिवेट उन्होंने मुझे जैसे किया, मैं चली जो गई 3 इयर्स के लिए थे वहाँ पर। So one year, first year, I did try to invite my colleagues and all जो मेरे साथ businesses में हैं and all that. But उनकी कुछ families का मसला था. The families would not let them come to the chamber because they said it's a club, male club and मतलब आपने वहाँ जाकर क्या करना है. Families के impression about the chamber was not like very friendly towards women. So वो ना उनको अपनी females को, अपने wives को, they were not encouraging them to go to Lahore chamber. I'm अच्छा, talking of 202 when I won the election. उसमें फिर बड़ी मुश्किल मुझे पड़ती थी, मेरी क्लोज़ फ्रेंड्स ही आ जाती थी। देन दे मेड अ पिंक रूम फॉर अस इन लाहौर जयपुर। पिंक रूम वाज़ मेड, दिस फॉर द लेडीज़ और लेडीज़ आती कोई नहीं थी। हुँ, अब वो दिस वेंट ऑन, अब आफ्टर अ ईयर आई थॉट एंड आई आल्सो फेल्ट अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी विद मेन फॉर वुमेन। हुँ, मैं जो कहती थी अच्छा मैंने बैंक्स को बुलाना है टू हैव अ मीटिंग विद लेडीज़, आपने बैंक्स को क्या करना है? दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग लाइक नॉट हुँ, वेरी एनकरेजिंग कह देते थे, लेकिन हुँ। नॉट लाइक वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स वुमेन। They didn't take बिकॉज़ you very seriously? नॉट मी हुँ, का मेरा तो बिज़नेस था ना, हुँ, मुझे तो उन्होंने सीरियसली लिया था तो बुलाया था ना हुँ, इलेक्शन के लिए। बट वो मुझे निकाल के बात करते थे ना, व्हिच हुँ, इज़ नॉट फेयर हुँ, कि भई अगर आपने मुझे बुलाया टू रिप्रेजेंट वुमेन, देन हुँ, लेट मी डू इट ना। बिल्कुल। पर वो ये था कि मुझे हटाकर मुझे वो अपना बना लेते थे कि आप हमारे ग्रुप की हैं, यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट, यू कम हियर। ये भी एक्सेप्टेंस का एक तरीका ये एक होता है तरीका है ना कि और उनको अलग ही रखते थे कि छोड़ो, हुँ, ये तो सीरियस नहीं है। हुँ, भई आप क्यों नहीं करते? बिकॉज़ ये सीरियस तो होती नहीं है, 2-3 साल बाद इन्होंने छोड़ देना है, व्हाई वर्क विद देम? दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो वो 1 साल तो मैंने देखा एंड देन आई सेड कि भई ये दिस इज़ नॉट वर्किंग, दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म अगर औरतों को सही मिल जाए। हुँ, सो दैट इज़ व्हाइल सिटिंग इन दैट चेयर, आई अनाउंस्ड वुमेन चैम्बर। अच्छा। So they were like, They must have lost their oh minds. yes, they all lost their mind. और ना मुझे निकाल सकते थे हुँ, because I was elected. बिल्कुल। 3 साल मैं उनके सर पे थी हुँ, और 2 साल मैंने अपना वुमेन चैम्बर खूब अनाउंस, खूब प्रमोट किया। अच्छा। बनने में तो उसको बहुत टाइम लगा। It took like about 7 years because the men were against it. हुँ, ये एक सिर्फ चैम्बर नहीं था हमारे खिलाफ।
लाहौर चेंबर तो उसके तो दुखती रग पे हाथ रखा ना कि उसके चेंबर के अंदर ही अनाउंस हो गया। लेकिन जो बाकी चेंबर्स हैं ना, वो भी अलर्ट हो गए ना Hmm. कि भई व्हाट इज़ दिस? ये कहाँ बनेगा? Why do एंड you व्हाई? think they were so against it at that Yes, time? they said one reason which I understand is they but they didn't believe in women as business ladies. कहने को कह देते थे। अच्छा उनकी वोटिंग लिस्ट में कोई 20% वुमेन थी तब भी, Hmm. बट दे वर ऑल हाउसवाइफ्स। ठीक है। वो अपने वोट पूरे करने के लिए कंपनीज में बना लेते हैं ना डायरेक्टर, बिल्कुल ऐसा नाम ही है। दे दिया, ऐसा ही है। दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। अच्छा देन द सेकंड थिंग व्हाट आई थिंक कि ये ना चूंकि इनकी वोटिंग लिस्ट में औरतें थी, दे हुँ। थॉट कि जी अगर ये अलग हो जाएगा, हर चेंबर ने सोचा, तो ये औरतें हमारे से निकल जाएंगी जो हमने वोट्स बनाए हुए हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट हो जाएँगी। वोट्स बनाए हुए ना इन्होंने, हुँ, एक पैनल्स होते हैं ना, उस बिल्कुल, पैनल ने अपने कुछ खातून वोट्स रखे हुए हैं, बिल्कुल। 20% वो हुँ, लूज कर जाएंगे ना। दे थॉट दैट कि ये तो अच्छा। उधर चली जाएंगी, तो ये हुँ, हमारा नंबर, हमारे आपस में आपस में हम पैनल्स ही आपस में लड़ रहे होंगे, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। हुँ, हुँ, हुँ। बट दे हैड रॉन्ग नोशंस। ठीक है। खैर एनीवे, इट टुक आउट, बट दे वर वेरी अगेंस्ट, देयर वाज नो वे। एंड हुमायूं अख्तर साहब जो मिनिस्टर थे तब कॉमर्स के, वो मेरे जो मेरा ग्रुप था उसका वो रिश्तेदार भी था उनमें से एक। एंड ही वाज लाइक बैडली स्टक अप। ही सेड कि हम हर वक्त उसके इस्लामाबाद उसके सर पे बैठ जाते थे कि करो प्रूव। हुँ, वो हमें भी कुछ नहीं कह सकता था, और वो और चेंबर का वो खुद मेंबर था लाहौर चेंबर का। वो फँस गए तो थे। वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे। वो हुँ, कहते थे कोई और आ जाए तो मुझे इसमें से निकाल दे, मैं ये साइन नहीं कर सकता। हुँ, दिस वेंट ऑन, स्ट्रगल वेंट ऑन फॉर गुड लाइक 6 years। अच्छा। हमने छोड़ा बट यू नहीं। डिडन्ट हाँ, नो, आपने छोड़ा नहीं। छोड़ा नहीं। चुप अच्छा। हो गया। मुझे मुझे हुँ, मीडिया भी बहुत कहता था, आप हुँ, किस चक्कर के पीछे पड़ गई हैं? हुँ, मैंने कहा, भई देखो कि आप ये रजिस्टर तो आपका हो नहीं रहा। वो तो वो और मुझे टीज़ करते थे ना। हुँ, 6 साल इज़ अ लॉन्ग, हर हुँ, वक़्त आप जाके बोलें वुमेन चेंबर एंड इट्स नॉट रजिस्टर्ड, बिल्कुल। तो इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। तो ख़ैर एनीवे, उसमें फिर ये था कि 2007 में माय फादर डाइड। माय फादर इज़ द ओनर ऑफ कोहाट सीमेंट। तो मेरी फैमिली ने कहा कि हमने कोहाट कप करना है, ब्रिज का गेम करना है जिमखाना में। अच्छा। एंड वो मेरी फैमिली ने वो अरेंज किया इन हिज मेमोरी। आफ्टर अ ईयर ही वाज अ वेरी गुड ब्रिज प्लेयर। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मुशर्रफ साहब उधर आ रहे हैं, बिकॉज़ ही इज़ आल्सो ब्रिज प्लेयर। अच्छा। आई डिड नॉट नो दैट। हुँ, सो दैट वाज़ द अपॉर्च्युनिटी व्हिच आई थॉट कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा मौका है अगर मुझे मिल जाए। हुँ, सो आई वेंट अप टू माय मदर, आई सेड मम्मा आपने क्या बैठना है स्टेज पर, मुझे अपनी जगह दे दो। अच्छा। हाँ? एंड माय brothers also were very much against this. हुँ, They also knew कि अगर ये बैठ के ना सिर्फ मुशर्रफ साहब को कुछ कह देना है। तो मैंने अपनी मदर को मना लिया। माय मदर सेड ओके दिस सीट इज़ फॉर हर। ठीक है। So she gave me the seat हुँ, हुँ, next to मुशर्रफ साहब on the अच्छा। stage, because हम होस्ट कर रहे थे ना। हुँ, तो मैंने उसको बता दिया। मैं कहा जी 6 साल हो गए हैं इस चक्कर में, रेप्लिकेशन है और प्रूव नहीं हो रही। हुँ, एंड ही वाज सरप्राइज्ड। He said कि अच्छा। such a wonderful idea and how come? He was very much oriented for women empowerment, आपको पता है ना? हुँ, In 208 he said कि ओके, एक साल बाद हुआ ना मेरे फादर की डेथ के हुँ, बाद। He said okay, send your application with this person and on Monday, and it was done. अच्छा। And that person, मुझे उसने कहा आप ही आने की जरूरत नहीं, ये बंदा एक नॉमिनेट कर लिया उसने। हुँ, He will come and bring the file. अच्छा। तो मैंने उसको फाइल दे दी, हुँ, वो साइन हो गई। अच्छा। अच्छा होता ये था हुँ, कि जब मुशर्रफ साहब का टेन्योर था ना, जब तो चूंकि वो डेमोक्रेटिक तो नहीं था ना, तो जो भी नेशनल असेंबली में जाना होता था ना केस, वो मुशर्रफ साहब की वजह से ऊपर से नीचे जाता था। ठीक है। अनलाइक नाउ हुँ, कि जब जो डेमोक्रेसी है ना, इसमें नीचे से ऊपर जाता बिल्कुल है। ठीक। एमएनएज दे सेंड इट। बिल्कुल ऐसा ही है। उधर उल्टा था। हुँ, उधर मुशर्रफ साहब विल सेंड टू द नेशनल असेंबली। मैं समझ गया। सो नेशनल इट वाज सेंट टू द नेशनल असेंबली, अप्रूव्ड इन 15 डेज। अच्छा, खत्म। अमेज़िंग और एमएनए वो ने हो गया। साइन तो नेशनल असेंबली नहीं करना था ना। बिल्कुल, लेकिन पर आपकी एक चेंज स्ट्रगल है था। इसमें 6 चेंज इयर्स। था ना उसका, हुँ, लॉ चेंज हो रहा था ना। हुँ, लॉ में था ही नहीं कि वुमेन चेंबर बन सकते हैं। अच्छा। जी, सो आपने एक तरह का लॉ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बना से लड़ा। ना, बना। हुँ, जब ये लॉ बना, एक और मज़े की बात, बड़ी लंबी बात तो नहीं हो रही, बड़ी नहीं, नहीं, इंटरेस्टिंग है। जब लॉ बिल्कुल। बना, हुँ, बहुत इंटरेस्टिंग बना। उसमें ये था कि लॉ के चेंज हुआ ना कि ऑल चेंबर्स, और जो लॉ बना उसमें वुमेन एंड मेल चेंबर दोनों लिखे गए। सो उससे लॉयर ने क्या कहा बाकी चेंबर्स को कि आप सब डी-रजिस्टर हो गए। अच्छा। यू ऑल हैव टू नाउ साइन हुँ, अंडर दिस न्यू लॉ। अच्छा ठीक है। उससे तो एक और धमाका जब बोला ना, वी वर द ओनली वन हू वर रजिस्टर्ड हुँ, एंड और ऑल कोई भी अदरवाइज़ नहीं रजिस्टर्ड था। डी-रजिस्टर्ड।
ये प्रॉब्लम आ गई ना। हाँ। अच्छा वो तो इतना सबको मुझे फ़ोन आ रहे हैं, आपको पता है लॉयर को हमने 5 लाख दिया, कोई कहे मुझे 10 लाख दिया। मैं कही जी मैं इसमें मेरा क्या कसूर है कि आपने लॉ बनवा के सारा सत्यानाश करवा दिया। मतलब हुँ, आपको नहीं पता मेरे साथ जो होता था। हुँ, को मैं चेंबर में नोन तो थी ना, बिल्कुल, फेडरेशन में भी नोन थी, वो तो बाद बिल्कुल। में खैर नोन हुए। लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे फ़ोन्स बहुत आते थे एंड इट वाज़ लाइक अ बिग मेस एंड देन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ चेंबर्स द इलेक्शंस वर डिलेड बाय 6 मंथ्स अच्छा, because none of the chambers were registered. हुँ, They had to get registered to vote for federation. अच्छा, तो फेडरेशन के 6 महीने इलेक्शन आगे चले गए ना। वो वोटर्स ही कोई नहीं है तो इलेक्शन कौन होएगा? so you kicked up quite the storm. I kicked up like मतलब you can't imagine अच्छा, that is insane that मतलब you did कि not know. This is I what did not know happened. that This is what कि happened. अच्छा हाँ, and to go through हम all of that फेडरेशन तक struggle. पहुँचे ना, उनके हुँ, 6 महीने उनके भी आगे करा दिए। एंड यू नो दिस थिंग व्हाट हुँ, हैपेंड सबको रजिस्टर होना पड़ा था अंडर द न्यू लॉ। सो दिस इज़ हाउ वी फाउंड आउट ठीक है, दैट वुमेन्स वुमेन चेंबर नहीं चेंबर बनेगा, किसी का चेंबर रहेगा ही कहीं नहीं। ये लॉ तो ये बन गया ना। लॉ हाँ, ये बन गया। हाँ। So you had the last laugh. Yes, I had the last laugh. Despite whatever they may have said, you had the Yes, last laugh. yes, of course. So that's an amazing story of resilience, I would say, and not letting go, being stubborn. Are you a Yes, stubborn person in life? yes, I am. You don't let go of your If principles easy. no, if I अगर मैं डिसाइड कर लूँ ना, हुँ, Allah is with me. अच्छा हाँ, माशाल्लाह। खत्म. Then I वो just तवक्कुल भी एक फिर बड़ा हाँ, रखना पड़ता है। I have very strong belief. पहले सोच समझ के करो ना, हुँ, कर लिया तो बस then there is no turning back. अच्छा हुँ. अमेज़िंग। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन कुछ तो आपने आंसर कर दिया है। मुझे कुछ समझ भी आ गया लेकिन बीइंग अ वुमन इन अ वेरी मेल डोमिनेटेड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशंस और जनरली ओनली सी मैन राइट कोई डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी है दैट्स अ गाय सिटिंग देयर ठीक है फार्मेसीज में भी आप चले जाएं फार्मेसी के जो ओनर है वो भी ज्यादातर मैन ही होंगे एंड एज आई अंडरस्टैंड यू आर वन ऑफ द ओनली फीमेल सीईओज इन द Yes, फार्मा सेक्टर इन yes, पाकिस्तान yes. so how difficult is something like that to do? The difficulty started from the day I announced my industry. ठीक है, जब मैंने डाइवर्सिफाई करने की सोचा फ्रॉम अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स वो तो था ही ना। बिल्कुल, आई थॉट कि एक और चीज़ भी मतलब मैं एंड माय हस्बैंड बोथ यूज्ड टू डिसाइड कि अच्छा डाइवर्सिफाई किसी और चीज़ में जाते हैं। हमारी 2-3 हमारी फैमिली के मेंबर्स ऑलरेडी हैं फार्मास्यूटिकल में थे, अभी भी हैं माशाल्लाह। तो वो ना इट वाज़ लाइक ईज़ी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मतलब दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। होता है ना कि जब बिज़नेस ढूँढ रहे होते हो क्या करना है, तो जो आपके सामने होता है आपको ज़्यादा ईज़ी लगता है ना कि अच्छा ये तो हो ही रहा है ना, लेट्स डू दिस। फार्मास्यूटिकल को स्टडी करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो आई अनाउंस दैट इंडस्ट्री। अब उसमें ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कुछ उसमें एक आई वुड नॉट लाइक टू नेम द इंडस्ट्रीज बट एक टॉप इंडस्ट्री मल्टीनेशनल उसका एक बंदे को उसको जानते थे उसको कहा और उसका हेड कि भाई हम बना रहे हैं तो यू कम एज अ पार्टनर एंड लीव दैट इंडस्ट्री एंड ब्ला 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 ही लेफ्ट इट एंड ही केम एज अ पार्टनर। अच्छा, बहुत लो अमाउंट पे पार्टनर बना रहे थे ना ताकि हम एक ग्रुप बहुत अच्छा बन जाए हुँ, स्ट्रॉन्ग। वो आ गया बहुत हाई फाइव वो बंदा था वो आ गया। हुँ, एक और बंदे को कहा वो हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग था वो भी आ गए। जब आ गए तो हमने कंपनी बना के शुरू कर दिया काम। वो जब हमने प्रोडक्ट्स लगाए ना तो जो उनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था ना हाँ, वो ही वाज़ द बेस्ट इन दैट हाँ। ही सेड कि हम इसी को स्टार्ट करते हैं ना बिकॉज़ ये अकेला ये लोग बना नहीं सकते लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोडक्ट एंड यू नो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। तो वो जब हमने कर दिया तो हमने जब अप्लाई किया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी तो जो दोनों कंपनीज़ को हमने बंदे तोड़ने में थे ना दे मेड श्योर कि रजिस्टर ना हो अच्छा, एंड इट हैज़ नेवर हैपेंड व्हेन यू अप्लाई फॉर अ रजिस्ट्रेशन दे रिफ्यूज़। हुँ, सो व्हेन आई वाज़ इन इस्लामाबाद तब तो ड्रैप नहीं थी ना तब वो थी ना हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तब वो ठीक है, थी ना बाद में ड्रैप बनी है ना। अच्छा एमओएच में चले गए, हम बाहर खड़े थे, जी को पता चला कि मीटिंग खत्म हो गई है और मीटिंग के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं जो मेंबर्स होते हैं ना, तो इट्स लाइक 20, 30, 25 इस तरह प्लस लोग होते हैं जो वो आगे अप्रूव करते हैं। अच्छा, पैनल तो के सामने अप्रूवल होता है। हाँ, हाँ, पूरा पैनल होता है पूरे पाकिस्तान से, जो उन्होंने बोर्ड बनाया होता है एमओएच ने। तो उसमें जब हमारी एप्लीकेशन की तो रिफ्यूज़ हो गई, अब मैं और हमारे दोनों मेरे दोनों पार्टनर्स भी बाहर खड़े थे। अब वो मुझे देखे वो कहें कि जी ये कैसे हो गया? हाउ इट हैज़न्ट हैपेंड बिफोर। अब मुझे भी बड़ा इंसल्टिंग लगा, मैं कहा गया तो गया, अब तो बनेगी नहीं। अच्छा जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ा हेडस्ट्रॉन्ग तो हम हैं ही ना। हुँ, अच्छा हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं जब ज़रूरत होती है,
नॉट ठीक एवरी है, टाइम। मैं समझ गया। हाँ, अच्छा उसमें ना बस थोड़े कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जिस पे आई वाज़ वेरी हेडस्ट्रॉन्ग। उस पे देन ज़रदारी साहब के बहुत क्लोज़ काज़मी साहब उनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे जो उस वक़्त उनके बिल्कुल राइट हैंड थे। तो ज़रदारी साहब और काज़मी साहब के ना कुछ लोग भी हॉस्पिटल में थे, दाखिल हुए थे सम 2-3 मंथ्स बैक। उस इस टाइम से उनको कोई वो चाहिए होते नहीं है प्रोटेक्शन फ्रॉम जेल एंड ऑल दैट। क्या होता है कि भई आप हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाए तो यू नो दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। वो जो होता है कि टू स्मूथ इट बिल्कुल। आउट ना जो वो करते हैं ताकि वहाँ पे ईज़ी ईज़ी होता हुँ, तो वो भी बेचारे बंद ही होते हैं अस्पताल में लेकिन लिटिल लाइफ इज़ लिटिल ईज़ियर। सो वो उसमें थोड़ा-सा हमारा राब्ता था और काज़ी साहब से राब्ता था। तो मैंने गुस्सा तो मुझे बहुत आया कि भई मेरे साथ ये मतलब इतनी बड़ी इंसल्ट। मैंने आई कॉल्ड हिम। ही गेव मी हिज़ नंबर, आई कॉल्ड हिम अप, आई सेड कि भई आपकी जो बहन है ना, उसका तो एप्लीकेशन बड़ी बुरी तरह रिजेक्ट हो गई है और आपके हुँ, शहर में हुई है, अच्छा। इस्लामाबाद में थी ना। ही सेड, हाउ कैन इट हैपन? मैं कहा जी मुझे तो नहीं पता ज़िंदगी में आज तक कभी भी नहीं रिफ्यूज़ हुआ। हुँ, ही सेड ओके गिव मी 5 मिनट्स। ही कॉल्ड दैट अपार्टमेंट एंड अच्छा। सेड वो लोग जा चुके थे खाना खा के बाय द टाइम आई गॉट हिज़ कॉल एंड दे वर ऑल लंच तक था ना मीटिंग तो दे वर ऑल एट द एयरपोर्ट जहाँ-जहाँ उन्होंने जाना था। हुँ, ही सेड कॉल एवरीबॉडी बैक, अच्छा, दे हैव टू साइन दिस लेटर बिफोर बिफोर मगरिब। ही गिव मी टाइम। अच्छा, 6 बजे से पहले साइन मुझे मुझे पहुँच जाए। ठीक। इस तरह उसके ऑर्डर्स चलते थे। चा हुँ, आपको पता है तब राइट हैंड भी राइट वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे। ही वाज़ वेरी बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग। ही वाज़ लाइक ज़रदारी साहब इज़ टॉकिंग। हुँ, सो दे कॉल्ड देम बैक एंड दे सेड जी हमें तो कुछ नहीं पता बट यू हैव टू प्रूव दिस कंपनी। हुँ, सो इट वाज़ अप्रूव्ड अच्छा, एंड आई गॉट दैट लेटर। हम लेटर लेके घर आए थे 7 बजे। ठीक है। ये लेटर मिल गया। हुँ, सो दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग उससे पता है क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो बाकी लोग हैं ना सारे प्रेप को भी, सबको भी, एमओएच को सबको पता चल गया कि ये इट्स नॉट दैट ईज़ी टू हुँ, फाइट हर। अच्छा। हाँ, एक इंप्रेशन बन गया ना कि ये डाडी है, हुँ, सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट विद हर। मैं हाँ, समझ गया। हाँ। हुँ, तो बाकी कंपनीज़ को भी पता चल गया कि भई शी हैज़ अ मसल और इसका हुँ, मतलब कोई इस तरह कोई इसको शी कांट जस्ट बी साइडलाइन टेकन फॉर करना ये ना आसान काम बड़ा नहीं है। आसान नहीं है ये। हुँ, सो लेट्स टेक इट सीरियसली नाउ। लेट्स टेक इट सो दिस सीरियसली। इज़ हाउ हुँ, इट हैपेंड। सो अच्छा, दैट वाज़ द फर्स्ट स्टेप ठीक है। जब बनने में हुआ। हुँ, वो उसके बनने के बाद साथ ही मतलब आपने एक चैलेंज को ड्यूटी फेस दिन ही करना हो पड़ा। गया ना, पहले दिन ही हुँ, हो गया ना। हुँ, उसके बाद ख़ैर चल पड़ा माशाल्लाह एंड देन इट वेंट ऑन एंड फिर एक्सपेंशन हुई, फिर उसकी हमने अब तुम्हारी माशाल्लाह फैक्ट्रीज़ लाइक वेरी वेल प्लेस्ड और वी आर इनटू एक्सपोर्ट इन 22 कंट्रीज़ एंड यू अच्छा, नो यू आर ऑल दैट। एक्सपोर्टिंग इन येस, 22 कंट्रीज़ एट येस। द मोमेंट। सो ये सारा एक सिस्टम तब माशाल्लाह अब चल रहा है। माय सन इज़ नाउ विथ मी। ही इज़ माशाल्लाह मेनली नाउ रनिंग इट। चैलेंजेस जो आते थे, उसमें ये था कि जब हमने अ, उसके साथ-साथ ही हमने चेंबर बना लिया था ना, तो उसमें क्या हुआ था कि जो सीटें हैं ना ख़वातीन की, वो बाकी चेंबर्स ने अपने सर्वाइवल के लिए कि भई ये तो वो मैंने बताया ना कि जो उनको प्रॉब्लम था कि वोट्स चले जाएँगे। उन्होंने सर्वाइवल के लिए एक सीट वो होती नहीं है नॉमिनेटेड सीट, नॉमिनेटेड ही कहते हैं ना जैसे असेंबलीज़ में होती हैं। बिल्कुल, नॉमिनेटेड सीट्स उन्होंने 2-2 हर चेंबर में औरतों के लिए कर दी, ठीक है। ठीक है? ताकि वो जो उन्होंने जाना था ना ख़वातीन ने चेंबर्स में, वो ना हुँ, जाएँ हुँ, और हमारे वोट्स हमारे पास रहें। ठीक है। सो दिस इज़ दे वर सक्सेसफुल इन दैट, हुँ, दैट्स ओके। उससे हमने उनको क्या कहा जो उनको बहुत बुरा लगा। हमने कहा जी देखिए हमने स्टार्ट किया था एक सीट से लाहौर चेंबर में, वुमेन चेंबर की एक वुमेन की एक सीट थी, वुमेन की एक ही सीट थी जो मैंने जीती हुँ, थी। मैं कहा जी नाउ वी हैव मल्टीप्लाइड इन 1 ईयर इंटू 42 चेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 2 हाँ, इट इज़ 84 84 सीट्स। हुँ, हाउ वी आर सो डैम सक्सेसफुल। जब उनको ये फिगर्स दिए ना तो दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो ये तो गलती हो गई है हमसे। प्रेजेंटेशन ही गलत हो गई है। खैर एनीवे अब हुँ, चेंबर्स भी बन गए, अब तो हुँ, प्रेजेंटेशन हमारी कोई 300 साढ़े 300 सीटों की है। अच्छा, तो चेंबर्स की अपनी सीटें भी हैं ना हुँ, और बाकी चेंबर्स में सीटें हैं। जब ये बनी ना तो फिर एसोसिएशंस ने भी सीटें बनाई ना। तो जो पीपीएम एसोसिएशन है ना, हुँ, जो हमारी फार्मास्यूटिकल की है, उसमें भी हुँ, 2 सीटें आ गई। अच्छा, तो वो ये था कि द एंट्री देन बिकेम वेरी ईज़ी। पर जब ठीक है। मैं आई इंडस्ट्री में, द सीट वाज़ देयर फॉर मी हुँ, बिकॉज़ और तो कोई लेने वाली थी तो नहीं ये ना। जो आपने वैसे एक स्पार्क इग्नाइट किया, जी, ये इंडस्ट्री वाइड फिर चला गया? इंडस्ट्री वाइड गया ना बिकॉज़ जब जब उन्होंने सर्वाइवल के लिए चेंबर्स ने कहा ना कि हमने तो बनानी 2 सीटें, हुँ, तो वो लॉ फिर इंस्टीट्यूशन वो एसोसिएशंस में भी चला गया ना बिकॉज़ और फेडरेशन का कंपनीज़ पे लॉ भी बन चला गया, गया ना। पब्लिक कंपनीज़ पे भी चला सब गया पे होगा। चला गया कि 2-2 सीटें रखो। अच्छा, सबने एक वेव चल पड़ी ना जहाँ पे वोटर्स का प्रॉब्लम था।
अच्छा वो सब अपना-अपना लगे थे कि हमारे वोट्स हमारे पास रह जाएँ। हर एक के पास ख़वातीन तो थीं, हुँ। बट दे वर लाइक नॉट वर्किंग, दे वर जस्ट फॉर द आई थिंक वोटर्स। हम वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन राइट्स और इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं, तो ये इनकलाब तो आपने कब से शुरू कर ये दिया? तो बड़ी देर से है। ये तो कि पता ही नहीं है 2-2 लोगों को। सीटें जब हुई ना हुँ, हर जगह पर, तो मेरे लिए पीपीएमए वाज़ अ वेरी सिंपल एंट्री। आई हैड नो टू इतने सारे तो मेल डोमिनेंट थे, एक खातून थी हुँ, और मैं उनकी बनी हुई थी प्रॉब्लम कि वो मुझे ही उन्होंने सीट देनी थी, बिकॉज़ उनके पास है ही कोई नहीं तो सीट किसको देंगे? बिल्कुल, तो वो बोर्ड पूरा वो नहीं ना होता, अगर बिल्कुल। सीट ना आए तो। एक सीट खाली तो नहीं रह सकती ना। तो या मैं थी, फिर उन्होंने एक और ढूँढी पैसिफिक वाली, वो हुँ, डायरेक्टर है। फिर हम स्वैप किया करते थे। अच्छा 1 अच्छा, साल तुम 1 साल मैं। अच्छा। सो दिस वाज़ लाइक हुँ, दिस वाज़ व्हाट हैपेंड। अच्छा, हाँ, अभी भी यही है। अभी भी है। अभी तक यही है हुँ, फार्मा में बिकॉज़ वहाँ पे और लोग नहीं ना आए। हुँ, बाकी जगहों पे तो चलो चेंबर्स भी बन गए, हुँ, लेकिन पीपीएमए तो वीमेन ओरिएंटेड नहीं बना ना, मेल ओरिएंटेड ही है ना, तो उसमें फिर ये इस तो उससे ये हुआ कि जो एसोसिएशंस हैं उनमें एंट्री औरतों की भी आसान होगी बिकॉज़ एक रूटीन चल पड़ी ना कि हर एक में 2-2 सीटें होंगी, नॉमिनेटेड। हुँ, नॉमिनेट उन्होंने नहीं करना है, हुँ, पर है तो औरत को ही करना है ना। हुँ, तो जो भी होगी है तो हमारा हिस्सा ना, तो दैट्स बिल्कुल। फाइन। अच्छा, सो दिस इज़ देन आल्सो वी गॉट अ सीट इन फेडरेशन। मुझे ये बताएँ कि हाउ डिफिकल्ट इज़ इट फॉर अ वुमन जस्ट स्टार्टिंग आउट हर करियर टू वर्क इन द फार्मा इंडस्ट्री? ज़्यादातर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मैंने देखे हैं या मेल्स होते हैं। मेल्स होते हैं। सीरियस में पता है क्या है जब से वी आई अच्छा एग्री सॉरी विद यू देयर। कंपनीज़ आल्सो प्रेफर मेल्स। वो यस, कहते हैं कि यस। यार दे हैव मोर स्टैमिना, ये बाइक पे फिर लेगा, आई डोंट थिंक सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट स्टैमिना कम की होगी, हाँ, कॉस्ट कम डॉक्टर्स होती के है। ऑफिस के बाहर ये उसको अरसा-अरसा गाड़ी बैठे रह सकते चाहिए, हैं। उसको गाड़ी चाहिए। हुँ, लेकिन अब थोड़ा-सा मैंने देखा है कि ख़वातीन अब डोंट माइंड। वो आज ये जब से उबर-शुबर आया ना, हुँ, दे डोंट माइंड। हुँ। मतलब इट्स लाइक अब तो आई एम क्वाइट हैप्पी टू सी कि 70 यस, भी चला रही होती हैं। ये तो फील्ड वर्क मोटरसाइकिल्स पे काफ़ी अब फीमेल्स फील्ड हैं, वर्क इलेक्ट्रिक बिल्कुल बाइक्स सही पे है। हैं। फील्ड वर्क अब ये उबर पे भी कर लेती हैं ना, हुँ, या मोटरसाइकिल अपनी बाइक्स ले लें हुँ। या उबर मंगा लें या व्हाटएवर। लाहौर और में तो काफ़ी मैंने देखा है। कॉस्ट हुँ, उसकी ना बाकी शहरों में भी हुँ। कॉस्ट उसकी अब उनको जो उनको मिलता है मोटरसाइकिल पे, उनको उबर पे वही पे करना पड़ता है। सो जी, फार्मा जी। सेक्टर में एक अथॉरिटी है हमारी ड्रैप के नाम से, वो काफ़ी चीज़ों को रेगुलेटेड रखती है। क्या वो रेगुलेशन पेशेंट्स के लिए अच्छी होती है, कंपनीज़ के लिए बुरी होती है? इन योर लाइन ऑफ वर्क वो कैसे इम्पैक्ट करती है आपके काम को? अच्छा देखिए आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ रैप एंड एमओएच अच्छा, आप तो फ्रैंकली। कहेंगी आप तो ऑटो फार्मा ओनर सीईओ हैं, नहीं, नहीं, आप तो नहीं, कहेंगी आई एम अ फैन नहीं, नहीं। अच्छा। देखो बिकॉज़ हुँ, हमने उनसे बहुत सीखा। जब हुँ, एमओएच बना था ना, हुँ, लेट मी नाउ जस्ट टू बी वेरी फ्रैंक अबाउट दैट, जब हुँ, एमओएच था, जब शुरू में जब हमने कंपनी बनाई, हुँ। तो उनको हमें उनसे ज़्यादा पता था, अच्छा ठीक है। फ्रैंकली बताऊँ। हुँ, एमओएच को कम पता था, अच्छा ठीक है। हमें ज़्यादा पता दे होता वर था। अंडर क्वालिफाइड मे बी। येस, हुँ, अंडर क्वालिफाइड या नॉट ट्रेन्ड या हुँ, व्हाटएवर। और हम लोगों को ज़्यादा मालूम होता था। फिर हम लोग घबराते थे कि भई हम ना ही बात करें, हुँ, कि हमारे गले पड़ेंगे। हुँ, दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मुझे याद है कि एक एफडी की ट्रेनिंग थी मलेशिया, वो मैंने ऑप्ट की तो मैं वहाँ गई। वो और इट वाज़ ऑन स्टरलाइज़ेशन एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे जब मैं वापस आई ना तो इनको पता नहीं एमओएच को पता चल गया कि मैं वहाँ पे गई थी ना ट्रेनिंग पर, अच्छा। लाइक 10 डेज़ ट्रेनिंग। तो मुझे फ़ोन आना शुरू हो गया, "आप आएँ ना, आप बताएँ ना, आपने वहाँ क्या सीखा? आप हमें भी बताएँ, आप हमें आके लेक्चर दें एक, हमें बताएँ व्हाट डिड यू लर्न अबाउट दैट?" दैट वाज़ द बट देयर वाज़ द थर्स्ट टू लर्न। हुँ, ठीक है, ये तो था ना, इतना नॉलेज देखिए एक किसी के बारे में इतना नॉलेज रखना है कि वो कहाँ गई है और फिर उसको फ़ोन करना कि हमें आके बताओ, हुँ, इट्स नॉट अ बैड थिंग। हाँ, आई मीन दे आर रेडी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एंड ऑल दैट। तो उससे मुझे लगा कि जैसे ना दे वांट टू गो अहेड। हुँ, मैं भी काफ़ी फिर जाके बताती थी उनको कि हमने ये सीखा, मैं बुक्स भी ले गई, जो कागज़ जो हमें मिले थे सब बताया उनको, कि हमने ये सीखा है, ये बताया एंड ऑल दैट। कुछ उनको पता था, कुछ उनको नहीं पता था। खैर देन बट दैट वाज़ वेरी एनकरेजिंग, हुँ, इट्स अ गुड एग्ज़ाम्पल। हुँ, उसके बाद जैसे-जैसे ड्रैब बनी और ड्रैब को जब एक बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस हो गई ना, पहले तो एमएच में थी ना, हुँ, उसमें और भी चीज़ें थी। अब ड्रैब में तो सिर्फ़ ड्रग ही आ गया ना, बिल्कुल। अब जब फ़ोकस्ड हो गया। अब इसमें फिर उसमें बजट्स भी आ गए, फिर उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी बन गए और फिर गवर्नमेंट भी ज़रा हो गई प्रोएक्टिव टुवर्ड्स दैट। तो अब उसमें ये है कि जी डब्ल्यूएचओ रजिस्ट्रेशन कराओ, तो पिक की रजिस्ट्रेशन कराओ, ये सब रैप को आना चाहिए। जैसे-जैसे वो कर रहे हैं, फिर ई-वाया आ गया, जो शहबाज शरीफ साहब लेकर आए थे हुँ, पिछले टेन्योर में। दैट वाज़ अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द फार्मा बिकॉज़ हम तो सभी
अपने अलर्ट पे आ गए थे, हाई अलर्ट पर कि भई ये कहाँ से आ गए ईवाई। हुँ, ईवाई शहबाज शरीफ साहब ने बनाया ग्रुप ईवाई का जिसको उन्होंने फंड किया। ईवाई है क्या? ईवाई ये अर्नेस्ट यंग ये जो हुँ, नहीं है कराची में चार्टर्ड अकाउंटेंसी हुँ, के, हुँ, इनको उन्होंने ये दिया कि आप जाके ऑडिट करें अच्छा, इन सारी फार्मा को अच्छा, और अपने पैटर्न से करो, हुँ, ठीक है? ईवाई को ईवाई ग्रुप है वो, ठीक है, ये शहबाज शरीफ साहब ने बनाया। इट इज़ इन द लास्ट टेन्योर व्हेन ही वाज़ द सीएम ऑफ पंजाब। ठीक है, अच्छा, तो वो बहुत हाई अलर्ट पे हम सब आ गए थे। जब जब ईवाई ने जब किया तो उन्होंने फिर हाई लेवल के फार्मासिस्ट, हाई लेवल के डॉक्टर्स हायर किए, बिकॉज़ उनको तो पैसों की कमी नहीं थी ना, हुँ, तो गवर्नमेंट पीछे थी उनके कि भई बस करो ये। हुँ, तो उन्होंने हर कंपनी को जाके ऑडिट किया, ठीक है, फार्मा ऑडिट, हुँ, नॉट फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है। ठीक है मतलब ना? आपकी प्रैक्टिसेज़, आपकी प्रैक्टिसेज़ हमारी मैन्युफैक्चरिंग हमारे प्रैक्टिसेज़, हमारे क्वालिटी ऑफ डिपार्टमेंट मटीरियल, सब कुछ, ये सब हुँ, कुछ ना द होल थिंग ठीक है, एंड दे देन एक-एक कंपनी में वो 4-4 4 3-3 दिन आते थे अच्छा, एट अ स्ट्रेच ईवाई वाले। अच्छा उससे फिर हमने बहुत सीखा हुँ, बिकॉज़ वो कहते थे कि हमने आपको कुछ आपका लाइसेंस वगैरह को हमने चैलेंज नहीं करना। हुँ, इट इज़ द रिपोर्ट दैट द गवर्नमेंट वांट्स हुँ, टू मेक अबाउट दैट कंपनी हुँ, एंड देन एडवाइस देम हुँ, व्हाट टू डू, हाउ टू गो अहेड। अच्छा, सो लोग डरते तो फिर भी थे ना हुँ, कि जी ये रिपोर्ट ड्रैप में चली जाएगी, ड्रैप वाली रिपोर्ट लेके हमें तंग करेंगे, यू नो दिस सॉर्ट ऑफ हुँ, नेगेटिविटी तो हो ही जाती है ना कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा है ना कि आप जाके चेक करो और इनको बताओ, इनके साथ इनको डेवलप करो। तो वो 3 दिन तो हमारी पहले जान खाते थे, फिर हमें वो लिख के देते थे कि आप ये खामियाँ, ये गैप्स हैं, आप ये करो। लेकिन द कंपनीज़ वर स्कैर्ड कि ये रिपोर्टें ना शहबाज शरीफ साहब ने ड्रैप को दे देनी है। अच्छा, और रैब ने फिर जब इंस्पेक्शन करनी है ना हुँ, लाइसेंस की तो उन्होंने ये कागज़ खोल के तो फिर हमारा उन्होंने कबाड़खाना करना है। मैं समझ गया, सो दिस वाज़ लाइक द फेयर। हुँ, सो ये था लेकिन इट वाज़ ओके आई गॉट वेरी फ्रेंडली टू देम। हुँ, एक तो वो डॉक्टर भी थे उसमें अंदर, वो वैसे भी इंसान मैं जब आप खुद डॉक्टर हो ना तो आप हुँ, थोड़ा जल्दी फार्मा और फार्मासिस्ट और इनके साथ ज़्यादा फिर पार आ जाते ये हैं ना। सेम फ़ील्ड के हाँ, होते हो सेम आप, फ़ील हो जाते हैं बिल्कुल, तो इट्स नॉट वैसे भी थोड़ी-सी मैं टॉकटिव भी हूँ इनके साथ। तो वो उनके साथ सीख भी गई। अभी तक वो ख़त्म हो गई फिर प्रोजेक्ट था कि 2 साल का। वो इट वाज़ वेरी गुड। फिर उससे ट्रैप ने बहुत सीखा। उसके अच्छा, बाद फिर ईवाई उनके साथ भी किया था, उनको भी ऑडिट्स करने, उनको भी बताने हैं। हुँ, सो इट वाज़ अ टीम व्हिच दे मेड एंड रैप उससे बहुत आगे-आगे सो चल गई। ओवरऑल उससे इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बहुत, इम्प्रूवमेंट्स आई बहुत हैं, ज़्यादा एज़ है। कंपेयर्ड टू बिफोर और या ये कंप्लायंस भी आ पर गई है, नेगेटिविटी मैं बिल्कुल नहीं थी नेगेटिव। मैं ठीक कहती है। क्या कर लेंगे? मुझे ये बताएँ कि फ़ार्मा सेक्टर में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसका रॉ मटेरियल वो लोकली सोर्स होता है या वो आप लोगों को इम्पोर्ट लोकली करना हमारे पड़ता पास है? तो बहुत कम है रॉ मटेरियल। देखो लोकली हमारे पास कितने होंगे? हुँ, 40 होंगे मैक्सिमम तो कहाँ से और आता है? रॉ मटेरियल्स आपको पता है कितने हैं? कितने हज़ार हैं? अच्छा, हमारे पास इतने ही हैं 40 मेरा अच्छा ख़्याल है जहाँ तक इफ और आई एम नॉट वैसे रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कई हज़ार कई हज़ार टाइप्स के हैं। रॉ मटेरियल्स आते हैं, हाँ ना, सो ये कहाँ से आते हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ हैं। डिपेंड करता है कि आपको आपका जो है ना एफडीए अप्रूव्ड तो ये जो हुँ, फैसिलिटी है वो ये है कि पहले तो एफडीए अप्रूव्ड ये सोर्सेज़ नहीं थे बाकी कंट्रीज़ में, हमारी कंट्री में नहीं है, ठीक है। ठीक है? हमारी कंट्री इज़ लाइक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट करती है रॉ हालाँकि मटेरियल। इंडिया में है इंडिया में तो और बहुत इंडिया इज़ आवर ज़्यादा है ना। नेबर। नहीं, हमारी कंट्री में नहीं है। हुँ, और उसमें देर से कि जी अब तो हम बहुत अब बनाएँ तो बहुत बड़ा बनाएँ, छोटा हमें सूटेबल नहीं है, हुँ, फिज़िबल नहीं है। दे हैव देयर ओन असेसमेंट्स एंड ऑल। फार्माजेन है 1-2 और हैं इस तरह के जो बनाते हैं। ठीक है। और अस्क्री था, अब अस्क्री शायद बंद हो गया है। इस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट है। कोई ज़्यादा नहीं है, 40 तक है। अब ये ना इसमें पहले मुश्किल था, हुँ, ये जो रॉ मटेरियल्स की सोर्स करना। अब ये है कि एफडीए अप्रूव्ड सोर्सेज़ हर कंट्री ने बना लिए। अच्छा, सिवाय हमारे? एवरी हमारी कंट्री में तो है ही नहीं ना हुँ, बेचारा। अपने अपने लिए ही है। हुँ, हालाँकि उसको प्रोटेक्शन भी बड़ी मिली हुई है, ड्यूटी प्रोटेक्शन भी है, सब है, हुँ, जो यहाँ पर हैं ताकि हम इनसे लें और बाहर से हमें महँगा पड़े। हुँ, ड्यूटी प्रोटेक्शन उसी को कहते हैं ना। ठीक है। लेकिन वो बस इंडिया, बांग्लादेश से भी हम इम्पोर्ट करते हैं, इंडिया से डायरेक्टली हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते ना। अब नहीं कर इट कम्स सकते। थ्रू दुबई। इट कम्स थ्रू दुबई, दुबई हाँ, होता इंडियन ही दुबई है। में उनके दुबई में उनके ऑफ़िसेज़ हैं ना, सबने इंडिया हुँ, ने दुबई में ऑफ़िसेज़ खोल लिए हुए हैं। हुँ, तो दुबई से तो आ ही सकता है ना, हुँ, इंडिया से नहीं आ सकता। ठीक है रूल तो इंडिया का है और ना। बांग्लादेश से भी आते हैं। बांग्लादेश भी देखिए इन सब ने बांग्लादेश से डायरेक्टली भी आ सकता है। हुँ, पहले तो बंद हो गया और था। चाइना? अब पहले तो बंद हो गया था। हुँ, अब लेटली खुला है हुँ, ना कोई तो मतलब ये जो कोई जंग 5-6 महीने है पहले या बॉर्डर 5-6 महीने कॉन्फ्लिक्ट्स के हैं साल पहले खुला है ना। हुँ, दुबई में सबके ऑफ़िसेज़ हैं। हुँ, सब वो जो है ना
के नेगेटिव एटीट्यूड के जी ये नहीं आना, वहाँ से नहीं आना। अब दुबई में हर एक ऑफ़िस है और दुबई का कागज़ बनता है तो हमारे कोर्ट ने क्या कहना है जब दुबई का कागज़ है तो? बिल्कुल। वो लॉ तो लॉ है ना, लॉ तो उन्होंने लॉ अबाइड ही करना है ना। चाइना से बहुत हैं, चाइना इज़ ह्यूज एंड चाइना में एफडीए अप्रूव्ड सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, और चूँकि चाइना की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपको पता है वो छोटा स्केल तो बनाते ही नहीं, हुँ। वो लार्ज स्केल बनाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी ज़्यादा होती होंगी। तभी मेरा कास्ट ख़्याल है प्राइस पे कोई चाइना तभी को बीट नहीं कॉस्ट कर इफेक्टिव सकता। हो जाता है, वो लार्ज स्केल होता है ना। हुँ, उनकी अपनी भी कंज़म्पशन होती है बहुत ज़्यादा और हुँ, फिर बाहर भी भेजते हैं, तो उनकी कंज़म्पशन ही बहुत ज़्यादा है, तो उनको फिर ज़ाहिर है उनको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, उनके साथ भी बीट नहीं कोई कर सकता। हुँ, इंडिया में भी हैं, इंडिया के भी मैं ये मुझे नहीं पता कि कितने हज़ार रॉ मटेरियल्स हैं उसके पास, लेकिन काफ़ी हैं। मतलब इंडिया से भी आते हैं, चाइना से बहुत आते हैं, फिर कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमें इन दोनों से हम इनके ऊपर चले जाते हैं कि नहीं हमने यूरोपियन सोर्सेज़ लेने हैं। हुँ। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हिच आर डिफिकल्ट और जो उनकी हम फिर च कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली मोस्ट जाती हाँ, होगी। लेकिन वो फिर डिपेंड करता है ना आपको प्राइसिंग क्या है, आप किस तरह की हुँ, क्वालिटी बनाना चाह रहे हैं। तो इट्स अ मिक्स। जर्मनी से बहुत आते हैं, हुँ, इटली से बहुत आते हैं। तो ये वो सोर्सेज़ भी हैं जो मतलब कोई अच्छी कंपनी जो है ना वो तकरीबन समझें हाफ एंड हाफ पर जा रही होती है। यूरोपियन, हुँ। इटली एंड जर्मनी एंड देन चाइना एंड सम लिटिल बिट ऑफ इंडिया। इंडिया में अच्छा, मजबूरी के तहत जाते हैं कि मैं अगर समझ गया। हाँ, कि अगर कोई बहुत ही है हुँ, तो नहीं अगर तो नहीं वहाँ मिल से हम रहा हाँ, हम हाँ, प्रोक्योर कर लें। हाँ, लेकिन चाइना फिर चाइना में एफडीए अप्रूव्ड बहुत है। हुँ, लेकिन हमारी प्रायोरिटी एफडीए अप्रूव्ड है। वो आपकी अपनी प्रायोरिटी है। मैं यही पूछने लगा था नहीं, कि हमारी प्रायोरिटी भी है हुँ, और बायर की प्रायोरिटी भी है। जब आपने एक्सपोर्ट करना है, तो फिर आपने हाँ, वो दिखाना हाँ, है सर्टिफ़िकेट कि ये जी रॉ मटीरियल उसकी वाज़ भी उसकी भी प्रायोरिटी है सर्टिफ़िकेट ना ऑफ हमारी। ऑथेंटिसिटी उसकी हाँ, होगी या अच्छा उसका लैब सैंपल एनालिसिस होगा, सारा उसका वो भी लगेगा। होगा। बिल्कुल, अच्छा ठीक है। हमारा एक जो बड़ा मसला है ना हमारा कि हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं हमारी इतनी बढ़ती? एक तो ऑब्वियसली ये है कि हम सब कुछ इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। उसमें ड्यूटी का तो चलो बचत हो जाती है, लेकिन हुँ, वैसे भी तो महँगा पड़ता है ना। अगर हुँ, ड्यूटी की बचत भी गवर्नमेंट कर देती है। हुँ, आपको पता है आप अपने अगर अपने एक्सपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल मंगाए तो आपकी ड्यूटी नहीं होती ना। हुँ, बट प्रोवाइडेड यू एक्सपोर्ट द होल थिंग हुँ, वो तो हो गया, हुँ। लेकिन फिर भी महँगा पड़ता है ना। लेकिन आप इंटरनेशनल प्राइसेज़ से तो कुछ ना कुछ कम्पीट फिर भी कर सकेंगे, नहीं? क्योंकि अगर यूएस मार्केट देखें, ये वहाँ तो पे तो काफ़ी एक्सपेंसिव एक चीज़ पड़ती है। जाएँगे तो फिर ना, हाँ, तो वहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री क्या हैं? उधर एफडीए और एफडीए आपको नहीं देता नहीं, मतलब कि उसका भी एक कंप्लाई सिस्टम है। इसका मैं पहले बताना ही चाह रही थी कि ये जो हमारा अ, एक बड़ा बैरियर है, वो ये है कि जब हमने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जब हमने एक्सपोर्ट करने एक तो ये थोड़ा-सा महँगा पड़ता है ना हमें इंडिया से अगर हम एक एट पार सबको देखें, हुँ, इंडिया, बांग्लादेश और हम खड़े हैं तो और चाइना, हुँ, तो हमारा प्रोडक्ट बनने में सबसे महँगा होगा, तो हमारी लेबर सबसे सस्ती है। हुँ, देयर इज़ अ लेवल लिमिट ना जितनी लेबर हमें कंपनसेट कर दे। हुँ, बाकियों की लेबर महँगी है। हुँ, कितनी कंपनसेशन मिलती है डिपेंडिंग कि हमने रॉ मटेरियल कितना महँगा लिया। तो इट इज़ लाइक अ कॉस्टिंग ना हुँ, कि अगर हमें रॉ मटेरियल भी महँगा मिला है और लेबर सस्ती है तो फिर भी वो हम महँगे हैं बाकियों से। वो तो एक चीज़ हो गई। जो ज़्यादा हमें मारता है ना वो ये है कि हमारे पास लैब ही नहीं है। जो इसकी जो टेस्ट माँगते हैं एफडीए अप्रूव्ड लैब्ड या डब्ल्यूएचओ हुँ, अप्रूव्ड लैब्स जो कमर्शियल लेवल पर हमारे प्रोडक्ट्स को टेस्ट करके इसकी रिपोर्ट दें, जिसकी बेसिस पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। हर कंट्री माँगती है एफडीए की रिपोर्ट माँगती है। बेब की रिपोर्ट, हुँ, बायोइक्विलेंस एंड बायोअवेलेबिलिटी लैब की रिपोर्ट, ठीक है। हमारे पास नहीं है। अब अच्छा। जब हम ये प्रोडक्ट अपना बना लिया, सब कर लिया, हुँ, फिर भी हम तैयार हो गए कि अच्छा हम हुँ, फिर भी बीट करेंगे। हुँ, अच्छा, फिर हम इसको टेस्ट बाहर से कराते हैं। अब हम जब टर्की भेजेंगे, टर्की इज़ द नियरेस्ट ये इंडिया भी है, लेकिन हम टर्की भेजते हैं। टर्की जब जाएगा, तो ज़ाहिर है हमारी हमें जो कॉस्ट पड़ेगा ओह! प्रोडक्ट उसमें इज़ कॉस्ट मच आ मोर जाएगी। देन द टर्की। तो कोई ये लैब बनाता क्यों नहीं है पाकिस्तान में? ये इसकी इतनी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि हुँ, गवर्नमेंट ना बनाए। हुँ, आज तक मुझे इसकी समझ नहीं लगी, ये प्राइवेट क्यों नहीं सेक्टर में बन आप रही? बना लें। हमने बड़ी कोशिश की हम भी अच्छा। बना लें, हुँ, ये बन नहीं रही। अच्छा। अप्रूवल ही नहीं मिलती बिकॉज़ ड्रैप कह देता है कि हुँ, हमारे पास अब तो डब्ल्यूएचओ हो गया अप्रूव्ड हुँ, कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है लैब अप्रूव करने की वेब की। और वो अथॉरिटी कौन देती है? वो अथॉरिटी भी इन्होंने खुद ही लेनी है ड्रैप ने, अच्छा, एफडीए से लेनी है। एफडीए नहीं है। हुँ, इन्होंने एक अथॉरिटी है इसकी वेब लैब की अप्रूवल्स की। ठीक है। हाँ, वो ड्रैप ने कुछ 2 साल पहले तो यही हमें कहा हुँ, था कि हम इसको अप्रूव नहीं कर सकते। हुँ, ठीक है? अच्छा। हाँ।
तो अपने सो वो अप्रूवल अथॉरिटी इन्हें मिलेगी, फिर इन्हें ये मिलेगी, इजाज़त फिर ये देंगे, अप्रूव फिर करेंगे। फ्री प्लेयर्स भी बना हाँ, सकती है पहले तो गवर्नमेंट खुद अगर बनाना चाहे। रिकॉग्नाइज़ होंगे ना, पहले खुद जैसे रिकॉग्नाइज़ हो। डब्ल्यूएचओ में हुए, फिर हमें हुँ, अप्रूवल देंगे। बट ये अच्छा। हो सकता है, बाकी लेकिन आपकी कंट्रीज़ ने भी तो इंडस्ट्री के की लिए है तो ये ना। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है अगर आप हो देखें ना जाए। कि आप प्राइस देखें कि एक हुँ, प्रोडक्ट को जो प्राइस पड़ती है ना टेस्ट हुँ, ऑफ वेब की, हुँ, दैट इज़ लाइक you'll surprised. अच्छा। पर पर प्रेजेंटेशन हुँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम $40,000 ओह! डाउन, बहुत भी सस्ती दुकान कंट्री में चले जाओ तो 20,000, अच्छा, तो बिटवीन तो ये 20 एंड वन टाइम 40। होता है या और ये कई दफ़ा तो ऐसे हैं हुँ, इम्पोर्टर्स हमारे हुँ, जो हमारी दवाइयाँ मंगाते हैं, वो तंग करने के लिए हमें कहते हैं कि हमें कनाडा से करा के दो, अच्छा, तो है ही 40,000। तो वो ये कहते वन हैं टाइम होता है? ये वन टाइम, बट ठीक है। वन टाइम वन प्रेजेंटेशन है ना। हुँ, अब देखो आपने अगर सपोज, आप तो समझते हैं ना फार्मा को, अगर सपोज मैंने एमॉक्सिसिलिन भेजनी है हुँ, सपोज, हुँ, अब एमॉक्सिसिलिन का मैं सिर्फ एक कैप्सूल तो 250 का नहीं ना भेजूंगी, हुँ, मैं कहूँगी 500 भी जाए, हुँ, पूरा प्रोफाइल जाएगा प्रोफ़ाइल तो जाएगा, बिकेगा ना, 1 डॉक्टर ग्राम तो भी आपको जाए, पता ही है। बिल्कुल। 1 ग्राम भी जाए, फिर उसका सिरप भी जाए, हुँ, दोनों सिरप्स की तो 5 हो गए ना। हुँ, बिफोर यू कैन एक्चुअली मार्केट दैट प्रोडक्ट इन दैट हुँ। कंट्री, सो हाउ मच आर यू गोइंग टू पे? $1 लाख। No, so you Yes, have to pay yes, against per even the presentation. oh my God, that's So it is insane. $1 lakh to enter one product in a You would be country. paying on the 1 gram on all the Yes, variants. yes. That I was not expecting that. No, That this is that is the this insane. this is I would insane. imagine कि वो जो आपका एक पैकेजिंग से पहले क्योंकि हाँ, कैप्सूल क्या है अ, उसके अंदर तो रॉ मटेरियल नहीं ने ना, पैक हो जाना है नहीं ऐसा कि नहीं है आपके ना। रॉ मटेरियल पे एक बार टेस्ट हो गया तो वो पूरा बैच अब टेस्टेड No, है डन है. every presentation has to have a report. That's 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 insane. highway So robbery. that is one हुँ, presentation. अब अगर कोई आप टीम बनाते हैं, मैं आपको और खोल के बताऊँ, हुँ, जैसे हमने आपको एक्सपोर्ट में इंटरेस्टेड थे आप, टीम बनाते हैं, जैसे मैंने बनाई चले, मैंने कहा जी मैंने कीनिया में टीम बनानी है। अब हमने एक प्रोडक्ट तो नहीं भेजना ना, टीम एक प्रोडक्ट कैसे बेचेगी? वो हुँ, कहेगी मुझे कम से कम 4 तो दो, हुँ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 20, हुँ. हाउ मेनी लैक्स? हाँ, कि वो टीम को भेजने का 4 खर्चा लाख अलग. डॉलर्स इज़ ओनली द टेस्ट। नो, टेस्ट की बात कर रही हूँ। अच्छा. $4 lakh is only the test payment that you're doing ओह to दैट्स get क्रेज़ी. entry into that country. फिर वहाँ से आप ये रिकवर कर सिर्फ सको या टेस्ट ना है, कर ये सको. टेस्ट लेता है, हुँ, फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसके लाइसेंस, उसका उधर उनका भी तो ड्रैप होता है ना, उनका भी तो हुँ, एमओएच होता है ना, वो हुँ, रजिस्टर करता है, उसकी फी होती है पर प्रोडक्ट ये वो। चलिए वो तो पार्ट ऑफ इट है ही ना। कई दफ़ा गवर्नमेंट भी कह देती है हम उसको, बहुत पहले करा करती थी कि हम रजिस्ट्रेशन सपोर्ट कर देंगे। वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, 5 $2-4,000 होती है पर प्रोडक्ट। लेकिन अब देखिए ये जो लैब का एक बर्डन है, हुँ, ये पाकिस्तान कहता है जी हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो भई कहीं तो हमें फैसिलिटेट कर दो ना, लैब ही बना दो बिल्कुल. या किसी लैब से डील कर लो हुँ. कि भई हाँ, ये हमें आई थिंक अगर फैसिलिट लोकली हो जाए तो देन यू डोंट हैव टू आई पे नो, सच आई नो, सच अ आई नो, क्रेज़ी आई अमाउंट. नो एंड दिस बेब लैब इज़ लाइक हुँ. ऑन इन आवर एवरी मीटिंग वी आर हम आस्किंग द बात करते हैं कि गवर्नमेंट। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जी, बढ़ाने हैं, हाँ, इंडस्ट्री की बात करते हैं, सो आई थिंक ये तो सबसे बड़ी चीज़ है. जी हाँ। इट्स हम वन ऑफ गवर्नमेंट द को हर वो प्लेटफ़ॉर्म पे कह रहे होते हैं कि हुँ, बेब लैब बनाओ। हुँ. बस वो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। लेट्स होप कि कोई हमें यस, सुन ले. यस, कि दिस इज़ लाइक वन हुँ, ऑफ द बिग थिंग्स। बाकी तो है ना, देखें, बाकी आप फिर भी कॉस्ट करते हैं, बट ये पहले आपको 4-5 लाख डॉलर तो सिर्फ अपने टेस्ट ही कराने हैं। हुँ. उसके बाद एप्लीकेशन जाती है फॉर रजिस्ट्रेशन। अच्छा. द रजिस्ट्रेशन टेक्स मिनिमम 6 मंथ्स इन एनी कंट्री। सो ये जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, दिस इज़ नॉट गिविंग यू एनी रिटर्न एंड इट कुड बी रिजेक्टेड देयर आल्सो, इसका आरओआई पता नहीं आपको कब जाके आएगा. और उसका रिजेक्ट भी हो सकता है ना। रिजेक्ट भी हो हाँ, सकता है या हाँ, फिर सेल्स वॉल्यूम ही आपको इतनी यस, ना मिले कि आप यस, रिकवर कर सको. यस। सो दिस इज़ द तो ये बड़ा बेसिक रिस्की काम है. It's risky, I would not say, because we हुँ, are very confident about our qualities. हुँ, हम सोच समझ के भेजते हैं लैब्स में और अच्छी क्वालिटी बनाते हैं। वैसे भी पाकिस्तान के लिए भी हमारी क्वालिटी इज़ वेल नोन, बट हुँ, कॉस्ट इज़ देयर। आप एक कंट्री में ये करना है ना, हुँ, सपोज़ हम 22 कंट्रीज़ में हैं। अब हुँ, देखो, लुक एट द अमाउंट वी हैव इन्वेस्टेड इन दोज़ कंट्रीज़, हुँ, कि हमने कितने टेस्ट कराए। ये थोड़ा है कि एक कंट्री को जो रिपोर्ट दोगे वो कल को वो लैब तो एक्सेप्ट दूसरी को क्या करेगी? कई वो कह देते हैं जी हमारी कनाडा से लेकर आओ, उनकी हुँ, अपनी ख्वाहिश होती है, टर्की वाला नहीं एक्सेप्ट करता, हुँ, एंड सो मेनी थिंग्स। दीज़ आर ऑल लाइक इम्पोर्टर्स की अपनी एक विश लिस्ट होती है, और आई डोंट से कि वो जान के करते हैं, लेकिन हुँ, उनको एक समझ अपनी होती है कि हमने यही लेना है। बिल्कुल. यू कांट ब्लेम देम। हुँ,
उन्होंने हमसे बिज़नेस करना है तो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं ना। बिल्कुल, ये तो नहीं है कि हम उनको कोई ज़बरदस्ती कर सकते हैं। तो वी हैव टू बिल्कुल। कम अप टू देयर स्टैंडर्ड। फिर आपका था क्वेश्चन एफडीए का। हुँ, अच्छा एफडीए में जो है ना सबसे बड़ी बात, वो ये है कि वी हैव टू बी देयर रिक्वायरमेंट। ठीक दे है, नीड अस, देन ओनली दे विल कम। ठीक है। दैट इज़ वेरी बिग क्वेश्चन थिंग। हुँ, सो दे डोंट नीड पाकिस्तान, दे डोंट कम। मैं समझ गया। दे नीडेड इंडिया, हुँ, व्हाई? जो मुझे समझ लगती है। मे हुँ, बी आई एम रॉन्ग बिकॉज़ इंडिया वाज़ ह्यूज इन दोज़ रॉ मटीरियल्स हुँ, और बहुत सस्ता था एंड हुँ, अमेरिका को बहुत सूट करता था, चाइना से वो लेना नहीं चाहता था। हुँ, ठीक है? सो दे हैड अ डील कि हम आपकी ये प्रूव करते हैं। हुँ, उन्होंने कहा फिर आप हमारी प्रोडक्शन भी प्रूव करें, प्रोडक्ट्स भी प्रूव करें। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे उनके प्रोडक्ट्स अप्रूव हुए थे जो जो एफडीए। उनकी हर कंपनी एफडीए अप्रूव्ड नहीं है फॉर फिनिश प्रोडक्ट। उनकी बहुत सारी कंपनीज़ अप्रूव्ड हैं फॉर रॉ मटेरियल्स। लेकिन जब डील हुई गवर्नमेंट ने जब डील की तब गवर्नमेंट ने अपना सोचा ना कि ठीक है अब ये करो, बिल्कुल। लेकिन हुँ, फिनिश प्रोडक्ट उन्होंने अपने सेक्टर का का सोचा, वो उन्होंने भी कहा करो। हम ग्लोबल तो स्टेज पे हैं। उन्होंने फिर वो भी किए। हुँ, नीड उनकी थी रॉ मटेरियल। हुँ, नीड की बेसिस पे वो आए और प्रूव किया और फिर उन्होंने अब तो इंडिया में भी एफडीए हो गया, अब तो बात ही खत्म। तो इंडिया एफडीए इंडिया बेस्ड हो गया। हुँ, सऊदी अरेबिया में एफडीए तब था जब सऊदी अरेबिया में सिर्फ 2 कंपनीज़ थी। आपको ये पता है? नहीं मुझे नहीं तब आइडिया मैं था। गई थी ना, अच्छा, अपनी कंपनी रजिस्टर कराने सऊदी अरेबिया में। तब मैंने अच्छा। सारा इसको स्टडी किया था। हुँ, तो दिस इज़ राइट हैंड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग। हुँ, एफडीए में मैं गई थी सऊदी अरेबिया में, रियाद में था। हुँ। एफडीए सऊदी अरेबिया उसका नाम था तो अगर आप और इंडस्ट्री सिर्फ 2 थी। अगर आप सऊदीया में फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू रजिस्टर योर ओन कंपनी राइट? एंड देन यू जस्ट यहाँ से आप सामान वहाँ भेज के वहाँ से रजिस्टर करा लें, ये पॉसिबिलिटी वो होती है? तो उनके रूल्स हैं ना। अच्छा वो ये नहीं करने देते। उधर भी तो एफडीए बैठा हुआ है। उनके हुँ, रूल्स है ना कि आप फिनिश प्रोडक्ट सारा एफडीए अप्रूव्ड होना चाहिए। हुँ, अगर आप अच्छा। सेमी फिनिश भी देते हैं, हुँ, हाँ? सारा प्लान किया था। हुँ, सेमी फिनिश पीसेस कैप्सूल्स बना लो, हुँ, तो फिर आप उनको भेज दो, उधर की पैकिंग वहाँ कर लो। बिल्कुल। तो वो सारा एफडीए अप्रूव्ड ये भी तो होना चाहिए ना सेटअप। नहीं हुँ, तो वो कहते थे कि फिर आप एफडीए अप्रूव्ड कोई चाइना में कोई कंपनी है जिसके पास कैप्सूल अप्रूव्ड है एफडीए, हुँ। वहाँ से मँगा के आप सऊदी अरेबिया भेजो। नहीं फिर तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं है ना, तो फिर तो नहीं। आप आप मेरी बात समझ गए मैं ना? समझ गया हूँ तो बिल्कुल। या है ही नहीं तो मैं वो क्या तो आप व्हाइट करूँगी? लेबल कर रहे हैं उस है चीज़ को ना? मतलब वो क्या है? हाँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि नीड, अब हुँ, नीड सऊदी अरेबिया उनका कैसा बन गया? नहीं था। हुँ। दैट वाज़ जस्ट ऑब्लिगेशन। वही 2 आपकी वाली बात कंपनियाँ कि थी। इंडिया में कर लिया तो सऊदीया में भी इसी वजह से कर नहीं, लिया। इंडिया में तो किया कि रॉ मटीरियल चाहिए। हुँ, सऊदी अरेबिया में से उनको चाहिए कुछ नहीं, तो ताल्लुक था ही कुछ हुँ, नहीं। 2 कंपनियाँ थीं, हुँ, जो मैन्युफैक्चर कर रही थी, ठीक अच्छा। है ना? और बाकी थोड़ी मल्टीनेशनल्स हुँ, थीं, जब मैं गई थी। हुँ, तो ये इन्होंने एफडीए सऊदी अरेबिया बनाया क्यों? टू ओब्लाइज सऊदी अरेबिया, हुँ। नॉट द इंडस्ट्री। सो आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं बिल्कुल दे देखिए प्लेड ऑन देयर अमेरिका स्ट्रेंथ्स यस उन्होंने दे प्ले लेवरेज ऑन यूज़ दिस किया। स्ट्रेंथ उनका उन्होंने कहा आप ये वो कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग आप बड़ा है, वो हमारा ये कर कंट्री दें। बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। उन्होंने कहा चलो जी उन्होंने कहा एफडीए बना दो, उन्होंने कहा बना लो। उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट देखा। ये देखे ना, उन्होंने देखा अपनी इंडस्ट्री का इंटरेस्ट। उधर तो था ही नहीं ना, हुँ, नहीं। उधर से 2 इंडस्ट्री थी तो उनकी नीड नहीं थी। हुँ, वो आए थे ओब्लाइज करने गवर्नमेंट को। हुँ, इंडिया में आए ओब्लाइज करने खुद को। हुँ, बट जहाँ भी है, नीड उनकी अपनी होती है हुँ। टू कम टू दैट कंट्री। ठीक है ना? तो वो जब हमारे तक नीड पास नहीं आएँगे बनेगी जब हम उनकी नीड बनेंगे, हुँ, वो तब कैसे बन आएँगे। सकते हैं? देखो एक तो ये तरीका है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी इंडस्ट्री वहाँ जाके खुली अमेरिका में। ठीक है। इंडिया ने सारे एस्पेक्ट्स किए थे ना। हुँ, इंडिया ने ये भी किया था जो बता रही हूँ और 1-2 कंपनीज़ वहाँ खुल भी गई थीं। हुँ, वहाँ पे जाके आप उनका लाइसेंस लो, वहाँ पे जाके आप इंडस्ट्री बनाओ, ठीक है? और वहाँ पे वो रिकॉग्नाइज़ कराओ। उसकी बेसिस पे फिर आपकी बैकअप इंडस्ट्री को वो आके करते हैं। ठीक है। बिकॉज़ उधर वो नीड बन जाती है बिकॉज़ वो इंडस्ट्री से खरीद रहे हैं आपके लोग अमेरिकन्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हुँ, हमने वहाँ कंपनी बनाई, डिस्ट्रीब्यूशन की और डिस्ट्रीब्यूटर आपसे दवाई ले रहा है। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो उसकी नीड बन गई ना वो इंडस्ट्री बिकॉज़ ये ले रहा है। बिल्कुल। तो वो फिर रिक्वेस्ट करता है ना हुँ, कि आप इसको प्रूव करें इसकी कंट्री में भी जाकर। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो आपके पास जी, जो ग्लोबली कहीं और या नहीं मिल ऐसा रहा? हो हुँ, या नीड हो। हुँ, नीड क्रिएट करनी होती है। यूरोप का ये तक प्रॉब्लम नहीं लेकिन है। उनके स्टैंडर्ड्स बहुत मुश्किल उनके है मीट स्टैंडर्ड्स करने। मुश्किल है। आप जाओ, आप अप्लाई करो एंड देन यू गो ऑन वो फीस लेंगे, आते जाएँगे। हुँ, हाँ, उनका तो दूसरा चक्कर है ना, वो जब जब बुलाओगे ऑब्वियसली देयर इज़ अ फी टू पे। वो हुँ, आएँगे, वो देख लेंगे, फिर आपको बता देंगे आप ये इम्प्रूव करो हुँ, एंड मे बी इट टेक्स 5 इयर्स, 4 इयर्स, जितने भी इयर्स, 3 इयर्स हुँ, वो
5-6 मीटिंग्स होंगी, आएँगे, फिर आपको फाइनली यू गेट द लेटर। सो दैट इज़ आई थिंक सबसे ज़्यादा जो बैंड so that is सब्सटेंसेस है। still doable हुँ। बिकॉज़ ये तो लंबा ही चक्कर है ना एफडीए का। ये तो एक जब गवर्नमेंट ही ओपन करा सकती है इस विंडो को। What would be one message for you for the youth of Pakistan, young women looking to step into the field, create their own businesses, entrepreneurial mindset के साथ, उनके लिए मैसेज क्या है आपका? देखिए, मेरा तो बहुत ही छोटा-सा सिंपल सा मैसेज है टू माय यंग एंटरप्रेन्योर्स। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ कि आप अपना सेल्फ एम्प्लॉय खुद को करें। दैट्स द बेस्ट थिंग एंड देयर इज़ नाउ फील्ड इज़ ओपन फॉर देम। देयर आर सो मेनी एंटिटीज़ जिसके अंदर आप जा सकती हैं। बट जो भी करें, गिव अ गुड थॉट ऑन इट, थिंक अबाउट इट। इमोशनल होके ये चीज़ दूसरे को कॉपी नहीं करना कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँगी। Think about it, go into the depth of it, go into the pros and cons of it. Once you've decided, then there is no turning back. Then the success, फिर सक्सेस तक उसको लेके जाओ। फिर वो आ जाती है मोटिवेशन कि आपने करना ही करना है। दैट इज व्हाट आई बिलीव कि जब आप समझ जाएं, सोच समझ के फैसला करें, और जब भी कोई फैसला करें, देन गिव इट इट्स ड्यू टाइम एंड गिव इट इट्स ड्यू ट्राई एंड सक्सेस विल बी योर्स इंशाल्लाह। Ji, very wonderful words and words of motivation as well. We thank Dr. Shaila Javed Akram for being a part of today's podcast and take care. Assalamu alaikum. Pakistan Zindabad.